Dear students, viewers, and learners, welcome to my YouTube channel Learn English with RK. I am Ravindra Harinkhede, उच्च माध्यमिक शिक्षक स्कूल फॉर एक्सीलेंस कटेंगी बालाघाट. Thanks for clicking. Once again, I am very happy to be with you. And in today's video lecture, we are going to discuss the last type of sentence, that is exclamatory sentence. Let us know what an exclamatory sentence is. So the exclamatory sentences are more effective or more forceful version of declarative sentences. तो ये जो exclamatory sentences जो होते हैं, they are more forceful version of declarative sentences. ये भी declarative sentence की तरह किसी statement को जो है express करते हैं, but here the speaker becomes more forceful. You got it? Their main purpose is to express a strong feeling or emotion or excitement. तो exclamatory sentence का जो main purpose होता है वो किसी strong feeling को, emotion को, excitement को, जो that comes suddenly in our mind. The feeling may be of anger, joy, sorrow, regret, praise, approval, disapproval, so many things. Okay? देखिए एक एग्जाम्पल से, जैसे हमने बोला कि he is very smart. He is very smart. अब इस बात को आप यदि if you want to speak it forcefully, if you want to make it a more forceful version, we can say, then what will we say? इस very को हटाया अपन ने और we can say how smart he is. How smart he is. So here you become more effective, more forceful in saying. You say he's very smart. Now you say how smart he is. How smart he is. So here you become more forceful. So this is the difference between an exclamatory sentence and a declarative sentence. अब देखिए हमने कुछ इसके स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश किया है. We can start in exclamatory sentence with what. यदि noun आया है तो what plus noun exclamation mark. और here we can use adjective also. Before noun we can use adjective. तो what, adjective, noun, exclamation mark. Or what, here also we can use an adjective plus noun plus subject plus suitable form of the verb be. ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है. We shall see some examples later on. Second one, यदि सिर्फ adjective है, if there is only adjective, then you have to use how. You can't use what here. Or you can say how plus adjective plus subject plus any suitable form of the verb be. लेकिन दो को लेते हैं अपन. जैसे how great, how great, आप कितने महान हैं. How great. Here we are using only adjective, therefore how. We can't use here what. What great? No, because it is great is an adjective, therefore we cannot use here what. So how great is right and what great is wrong. हाँ, हम इसको ऐसा कह सकते थे, यदि what लगाना है तो what a great man. What a great man. What a great man. तो here we can use what because we are using here noun. Noun है तो what लगा सकते हैं. अब और एक बात इसमें देखिए, हम इनके बाद में subject plus suitable form of the verb be भी लगा सकते हैं. जैसे देखिए आप मान लीजिए घूमने गए हैं कहीं और बहुत विशाल, if you see a very big building, तो you say what a building. You may say what a building. It is a feeling of surprise, we can say. So what a building. What a building. Or you can say what a building it is. What a building it is. So you can add subject plus suitable form of
द वर्ब बी। फॉर्म ऑफ बी देखिए, बी मीन्स होना, बी के फॉर्म होते हैं इज, एम, और प्लूरल फॉर्म आर, सेकेंड फॉर्म हो जाता है वॉज, इधर आर का सेकेंड फॉर्म हो जाता है वर्ब, एंड थर्ड फॉर्म इज बी। सो एज पर द डिमांड वी यूज suitable form of the verb be in that case. So here also you can say, कोई आपको बहुत सुंदर लग रहा है तो आप क्या बोलेंगे, how beautiful, how beautiful, how beautiful, कितनी सुंदर। You are not asking a question, you are expressing a sudden feeling. It may be the feeling of joy or something like that, or anger or whatever it may be. So how beautiful, or you can say how beautiful, you can extend it up to she is, how beautiful she is. So how beautiful or how beautiful she is. तो I think you got it. अब और आगे देखते हैं। Here you are using adverb. What are we using here? Adverb. See, मान लीजिए यू आर टीचिंग इन ए क्लास एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू यू अटेंटिवली, बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, एक खुशी का भाव व्यक्त कर सकते हैं, हाउ अटेंटिवली, हाउ अटेंटिवली यू आर लिसनिंग, हाउ अटेंटिवली यू आर लिसनिंग, कितने ध्यान पूर्वक आप सुन रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लिसनिंग वेरी अटेंटिवली। देखिए नरेशन जब हम पढ़ेंगे तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना होता है। सो हाउ अटेंटिवली यू आर लिसनिंग, कितने ध्यानपूर्वक आप सुन रहे हो। व्हाट डू यू वांट टू से, इसको यदि आप थोड़ा सा लेस फोर्सफुल बना देंगे तो इट विल बिकम यू आर लिसनिंग वेरी अटेंटिवली, यू आर लिसनिंग वेरी अटेंटिवली। हाउ ग्रेट यू आर, एक्सक्लेमेटरी, यू आर वेरी ग्रेट। हाउ ब्यूटिफुल शी इज, दैट मीन्स शी इज वेरी ब्यूटिफुल। सो how, adverb, subject plus verb, it may be any form, किसी भी टेंस में आप इसके बाद का सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे हाउ नाइसली दे प्लेड, हाउ नाइसली शी sang a song. So in this way you can use any tense here. अब एक और बात हम बताएं, आप सिर्फ सिंगल एडजेक्टिव से भी आप एक्सक्लेमेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने एक पेंटिंग बनाया और आपको बहुत अच्छी लगी तो आप बोलोगे ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, और यू सिंपली से ब्यूटीफुल, नो नीड ऑफ सेइंग द पेंटिंग इज, और अमेजिंग, यू मे से अमेजिंग। एक एडजेक्टिव से टेरिबल, यदि कोई चीज़ आपको बड़ी भयानक लग रही तो टेरिबल, या कोई एक ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से गीत को गाया, आपके एक्सपेक्टेशन के से ज़्यादा हो जाए तो बोलोगे यार, तो यू विल से अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, so you can say like this. So terrible, amazing, fantastic, fantabulous. In this way you can express your exclamation just by using an adjective. सिर्फ अकेला एडजेक्टिव और के साथ भी आप अपने एक्सक्लेमेशन को व्यक्त, विस्मय को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। हिंदी मीनिंग विस्मय सूचक वाक्य कहलाते हैं। अब एक बहुत ही फिफ्थ स्ट्रक्चर की बात करें, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस वर्ब प्लस टू प्लस वी1। जैसे आप इस तरह से बोल सकते हैं, किसी ने आपकी बड़ी उदारता दिखाई आपको मदद करने में, तो आप बोल सकते हैं हाउ काइंड ऑफ यू, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, हाउ काइंड ऑफ यू टू, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, एक्सक्लेमेशन मार्क। आपने कितनी उदारतापूर्वक दया के साथ मेरी मदद की, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। मान लीजिए बहुत घोर अंधकार है, 12 बजे रात को कोई अकेला चले जाए तो आप बोलेंगे ना, अरे हाउ बोल्ड ऑफ यू टू गो देयर अलोन, हाउ बोल्ड ऑफ यू टू गो देयर अलोन। कितनी बहादुरी के साथ, बड़े दम के साथ आप वहाँ अकेले चले गए, लाइक दिस। सो दिस इज द फिफ्थ स्ट्रक्चर। अब देखिए ये सो और सच, इसको ऐसा पैटर्न में लिखना थोड़ा सा कठिन है। अपन बोलते हैं ना, है ना, मेरा स्टूडेंट तो इतना गधा, माई स्टूडेंट्स एंड सो स्टूपिड, माई स्टूडेंट एंड सो स्टूपिड, मेरा छात्र इतना गधा। तो देखिए सो, माई स्टूडेंट DENT
माई स्टूडेंट एंड सो स्टूपिड, मेरा स्टूडेंट इतना गधा, तो एक आप एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है। या इसको सच से कैसा बोल देते, देखिए सेम सेंटेंस कैन बी स्पोकन यूजिंग, है ना, या सच अ स्टूपिड बॉय, सच अ स्टूपिड बॉय एंड माई स्टूडेंट, और ये एक्सक्लेमेशन हुआ, है ना, सच ए स्टूपिड बॉय एंड माई स्टूडेंट, ऐसा गधा जड़मती का छात्र लड़का और मेरा छात्र, नो नो, इट कैन नेवर बी। सो इस तरह से आप सो और सच का, देखिए सच के बाद ए और एन लगता है इफ द नाउन इज सिंगुलर, है ना, तो यू कैन से लाइक दिस, है ना, जैसे कोई बोल सकता है सच एन अगली गर्ल, सच an ugly girl and my friend, such an ugly girl and my friend, इतनी बदसूरत लड़की और मेरी दोस्त, नो। या फिर इसको my friend, है ना, my friend and so ugly, मेरी फ्रेंड और इतनी बदसूरत, नो। तो इस तरह से आप सो और सच के साथ भी जो है आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। एक लास्ट तरीका है, देखिए इंटरजेक्शन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, आपने पार्ट ऑफ स्पीच के समय पढ़ा हुआ है, हम कभी डिस्कस करेंगे। शुरू में हम जो इंटरजेक्शन को रख देते हैं, फिर उसके तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रख देंगे, एंड वी कैन में पुट एनी असर्टिव सेंटेंस। जैसे मान लीजिए आपका अंतिम में जो है ऐसा लग रहा है कि आप मैच नहीं जीत पाएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू विन द मैच, और सडनली आपका टीम से कोई 6 मार देता है, तो फिर आप खुशी के में झूम जाते हैं और बोलते हैं कि यार हुर्रा या हुर्रे, वाई या एच दोनों लगा सकते हैं, हुर्रा या हुर्रे एक्सक्लेमेशन मार्क, वी हैव वन द मैच, एंड यू स्टार्ट डांसिंग, है ना, इन द ग्राउंड, वी हैव वन द मैच। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन रख देंगे शुरू में, और फिर एक असर्टिव सेंटेंस रख देंगे, हुर्रा वी हैव वन द मैच। या कोई दुख का भाव है, तो मान लीजिए थोड़े समय पहले आपसे बात हुई थी और पता चला यार कि वो डेथ हो गई, तो आप बोलोगे एलास ही इज़ नो मोर, हाय अब वो नहीं रहा, अरे अब वो नहीं रहा, तो एलास ही इज़ नो मोर, नो मोर यानी अब नहीं रहा, तो एलास ये सारों को बताता है दुख को, एलास ही इज़ नो मोर, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कम्स जस्ट आफ्टर इंटरजेक्शन। अब हम इसके और कुछ अतिरिक्त वाक्य देखेंगे। इंटरजेक्शन के बारे में हमने लिखा है, इंटरजेक्शन सोज सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, प्रेज एटसेट्रा। तो अचानक आपके मन में कोई भाव आता है, खुशी का, दुख का, आश्चर्य का, कोई किसी प्रशंसा के लिए, तो वहाँ हम जो वी यूज़ इंटरजेक्शन। अब हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं। सो वील टेक सम मोर एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स डिस्कस्ड। First thing, what a news, or you may say what a news it is, or you can add an adjective also, what a good news it is। बहुत अच्छा समाचार सुनेंगे तो आप इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपका मैच बड़ा क्रिटिकल हो गया है, यू नीड 2 or 3 रन्स टू विन द मैच, और इस बीच में एक 6 पड़ जाता है, तो विथ जॉय यू स्टार्ट डांसिंग और क्राइंग एंड से व्हाट a shot, or what a nice shot, or you may say what a nice shot it is। इसका यदि हम assertive बनाए तो it is a very nice shot, it is a good shot, like that you can say। कोई बच्चा बहुत क्यूट लगा आपको, तो यू है ना, आपके अंदर एक प्रेज, एक उसके लिए प्रशंसा का भाव आता है आपके मन में, तो यू से हाउ क्यूट, और यू मे से हाउ क्यूट द बेबी इज। अब देखिए हाउ प्लस एडवर्ब प्लस असर्टिव सेंटेंस, है ना, ठीक है। हाउ, कोई बच्चा या कोई व्यक्ति बड़े रुचि के साथ काम कर रहा है, ही मे बी डूइंग एनी वर्क, तो यू ऑन सीइंग हिम यू मे से हाउ इंटरेस्टिंगली ही इज़ वर्किंग, कितना रुचि के साथ वो काम कर रहा है। यदि इसका असर्टिव बनाए तो ही इज़ वर्किंग वेरी इंटरेस्टिंगली। मान लीजिए कोई लड़की है, कोई है ना सिंगर है, बहुत अच्छे से गा रही, तो आप उसको किस तरह से अप्रिशिएट करेंगे, हाउ ब्यूटिफुली शी इज सिंगिंग, या हाउ नाइसली शी इज सिंगिंग। अब एक स्ट्रक्चर हम रहा था, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस सब एनी नाउन और प्रोनाउन प्लस 2 प्लस B1 प्लस समथिंग एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो देखिए
कोई आप में से कोई आपका लीडर है जिसने सभी लोगों को बड़ी चतुराई के साथ विश्वास में ले लिया और अपने से सहमत करा लिया, तो आप बोलेंगे हाउ क्लेवर ऑफ यू टू कन्विंस ऑल, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू कन्विंस ऑल, कितनी चतुराई से आपने सभी को कन्विंस कर लिया, विश्वास में ले लिया। कन्विंस यानी टू टेक समबडी इनटू कॉन्फिडेंस। यदि इसका असर्टिव बनाए तो क्या हो जाता है, यू कन्विंस्ड ऑल क्लेवरली, यू कन्विंस्ड ऑल वेरी क्लेवरली, बड़ी चतुराई से आपने सभी को विश्वास में ले लिया। तो ये मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अचानक आपके गांव में मोहल्ले में शेर घुस गया और वो बड़े बहादुरी के साथ उसको भगा देता है, तो आप बोलेंगे अरे हाउ करेजस ऑफ यू, हाउ करेजस ऑफ यू टू ड्राइव अवे द लायन, यानी यू ड्रोव अवे द लायन करेजसली, बहादुरी पूर्वक आपने जो है शेर को भगा दिया। अब देखिए इंटरजेक्शन तो बहुत सारे हैं, उतनी लंबी चर्चा यदि हम करते हैं तो समय की कमी हो जाएगी, द वीडियो में भी वेरी लॉन्ग। मैं आपको कहूँगा कि आप इंटरजेक्शन के लिए जो है अच्छी ग्रामर बुक्स, जैसे मैं बहुत कहूँ अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, लुसेंट पब्लिकेशन की बुक है, डॉक्टर बीबी जैन की बुक है, डॉक्टर ठाकुर है, केशी त्रिवेदी है, दीज आर द गुड बुक्स आई रिकमेंड यू टू रीड, सो यू विल गेट डिटेल्ड discussion about interjection and their uses. I have given you a few examples. The puppy is so charming. एक पपी आप देखते हैं बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, चार्मिंग लग रहा है, तो एक खुशी का भाव आएगा, द पपी सो चार्मिंग। मान लीजिए आप मम्मी ने या पापा ने, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए ड्रेस लाया और आपने जैसे ही खोल के देखा उसको तो अरे आप खुशी से झूम उठते, वाओ दिस इज सो नाइस, कितनी गजब की है ये ड्रेस। तो या किसी के दुर्घटना में सीरियसली इंजर्ड होने की आपको सूचना मिल गई तो फीलिंग ऑफ सारो होगा, रिग्रेट होगा, दुख का भाव आएगा आपके अंदर, तो ओ माय गॉड, है ना, सी सीरियसली इंजर्ड, ये भगवान क्या उसे बड़ी है ना सीरियसली इंजर्ड हो गई। और कोई दुख का भाव है तो ओह या व्हाट से भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपका मित्र है जो बहुत होशियार था परंतु आपको खबर लगी कि ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो यू विल से ओह ही फेल्ड इन द एग्जाम, अरे वो फेल हो गया। और व्हाट, क्या ही फेल्ड इन द एग्जाम, नो आई कांट बिलीव इट। तो इस तरह से आप यू कैन मेक मेनी मोर सेंटेंसेस। Viewers, I think it's enough about exclamatory sentences. If you have any problem, you can leave them in the comment section. पहले की तरह फिर से कहूँगा कि आप यदि सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। दिस विल बी अ ग्रेट सपोर्ट टू मी। थैंक यू।